Okay, so good morning everyone. Today is 10th of September 2025 and I am here with a very important video which is related to the current GST reforms, and I'll also be updating with you some data which are related to international affairs and governance. So as you can see here, the first news, before starting the topic, I'll just go through the news here that is related to international relations. So recently, the U.S. Department of Defense has been renamed as the U.S. Department of War. Okay. Then the next news is that is a probability is arising that the U.S. may strike Venezuela. So they may use F-35 fighter aircrafts, and the reason for this is because Venezuelan president, that is Nicolas Maduro's closeness to Russia and China. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, that is Nicolas Maduro, he is very close to China and Russia. So this is making the US nervous. Okay, so beside there, the US is like militarizing the Pacific and Atlantic as well, and you can see that they have cited the reason of drug issues. Okay, other probable reasons for which US may strike Venezuela is because of oil reserves. Okay. Next, there was news related to a particular Austrian economist, that is Gunther Fehlinger-Jahn. Okay, so Gunther Fehlinger-Jahn is a self-proclaimed NATO activist. मतलब ये NATO से related नहीं है, but this person is claims to be a person who is related to NATO. Okay, so recently we have seen his controversial agenda or statement regarding India. Okay, and he named it Dismantle India. So he had posted in his X handle about dismantling India, so and backing the Khalistani terror agenda. Okay, so the reason here also you can see that there is a reason. This particular person, Gunther Fehlinger-Jahn, he is like you can say anti-Russian. Okay, so as you can see, India's growing closeness with Russia and China in the recent SCO summit as well. So this was one of the reasons for which he had given this post. Okay, so not a big matter, but still as a contemporary news, I brought this. Next, there is news related to Nepal. Okay, so Nepal as well as Israel. So I'll just go through that. So if you can see here, that is you will see a post related to Nepal. Okay, Nepal. So what is happening in Nepal? Like on 8th of September, Nepal has seen like protests from the Gen Z groups. Okay, those Generation Z. So Generation Z मतलब वो youth होंगे जो मतलब 20 यू कैन से 21st सेंचुरी में जो बोर्न हुआ है, ठीक है. सो जैसे 2000 से लेके अब तक जो है, दैट इज द जनरेशन Z. ओके, सो दिस जनरेशन Z youths have been like going through a यू कैन से नेपाल में मतलब एक बड़ा आपने देखा भी होगा फुटेज वगैरह सोशल मीडिया में. नेपाल में बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस हो रहा है अभी, ठीक है. और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर तो अभी पता नहीं, ही इज KP शर्मा ओली जो है, ही हैज फ्लेड काठमांडू, एंड काठमांडू में जो उनके पार्लियामेंट बिल्डिंग्स थे, सुप्रीम कोर्ट थे, वो जला दिए गए, एंड द होम मिनिस्टर हैज ऑल्सो रिजाइन. ओके, so this is kind of coup which is taking place similar to बांग्लादेश में जो हुआ था. नेक्स्ट एक न्यूज़ है इसराइल से रिलेटेड. ओके, सो इसराइल से रिलेटेड जो न्यूज़ है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जो मैंने रिसेंटली अपडेट किया है. ओके, सो यू कैन सी हियर 8 सितंबर में क्या हुआ था. जो फिलिस्तीनियन गनमैन है फ्रॉम वेस्ट बैंक, ठीक है, उन्होंने जेरूसलम के एक पास रामोत जंक्शन है, एक जगह है जेरूसलम के पास, ठीक है. सो रामोत जंक्शन में उन्होंने एक बस में उठकर मतलब उन्होंने जैसे 2 टेररिस्ट थे वहाँ पे, सो उन्होंने फायरिंग किया था. अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह से 6 लोगों की मतलब मृत्यु हो गई और 21 वेर इंजर्ड. ओके, नेक्स्ट 9 तारीख का 2 न्यूज़ है. एक है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो इंडिया ने साइन किया है विद इजराइल, एंड दूसरा है Israel has bombed the Hamas bases in Qatar, and this has occurred first time in history. Okay, so these are some news. Next, international relations क्लोज करने के बाद हम लोग देखते हैं अभी गवर्नेंस की तरफ, ठीक है. तो गवर्नेंस में न्यूज़ क्या है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसेंट न्यूज़ ये है कि 9 सितंबर yesterday CP Radhakrishnan ji, he was the NDA candidate for the vice presidential election.
एंड उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी ने मतलब इस बार वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए, ठीक है। तो 9 सितंबर 2025, यू कैन सी हियर 9 सितंबर 2025, he has won the vice presidential election, and he said he is ought to take the oath वगैरह बाकी है, लेकिन he is going to be the 15th vice president of independent India. Okay, so ये सारी न्यूज़ थे आपके। Now let's come to the main thing, that is GST reforms, ठीक है। So GST reforms में आप देखो यहाँ पे, I'll just begin with a slide show ताकि आपको आसानी हो, फुल स्क्रीन दिखे। सी, जो जीएसटी रिफॉर्म से उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं अबाउट द आइडिया ऑफ जीएसटी। ओके, सो जो आइडिया था जीएसटी का, ठीक है, इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 2000। सो जो साल 2000 है उसमें पहली बार जीएसटी का आइडिया प्रपोज किया गया था। और उसके बाद क्या होता है, एक एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स वे सेटअप, ओके, टू स्टडी द सेल्स टैक्स रिफॉर्म्स। सो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैल्यूएटेड टैक्स वगैरह लोकल टैक्सेस लगते थे, एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। इसकी वजह से बहुत कुछ दिक्कतें फेस करना पड़ता था। मतलब एक चीज जैसे है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड है, वो असम में अगर देखोगे आप उसका प्राइस अलग है तो बिहार में अलग है, ठीक है। इसकी वजह से ये जीएसटी जो आइडिया है वो बिल्डअप हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जो पास हुआ था 2016 में, और उसी साल में ही रेटिफाई भी हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, सारे स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था ये जो टैक्स स्ट्रक्चर, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया था, ठीक है। एंड दिस वाज हाउ जीएसटी केम इनटू बीइंग। और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास हुआ था, लेकिन जो जीएसटी है वो रोल आउट हुआ था, मतलब इफेक्ट में कब आया, फोर्स में कब आया था, याद रखिए 1 जुलाई 2017 में ये फोर्स में आया था, ठीक है। नाउ जो जीएसटी रिफॉर्म्स अभी लाए गए 2025 में, वो इफेक्टिव कब से होगा, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर, इसी महीने के 22 सितंबर से ये इफेक्टिव होगा। अभी इस बार जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स है, इसके बारे में अनाउंस किए गए थे बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर पीएम मोदी, ठीक है, ऑन 15 अगस्त 2025। सो इंडिपेंडेंस डे के दौरान ही ये मतलब अनाउंस किया गया था, ठीक है। इसमें इस बार क्या होगा, ये जो मतलब पहले जो 4 ईयर का स्ट्रक्चर था ना, 5%, 12%, 18% एंड 28%, इसको रिड्यूस करके 2 स्लैब बना दिया गया, ठीक है। और एक 40% का एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेरिट रेट लगाया गया। सो 5% को मेरिट रेट रखा गया, 2 स्लैब। अभी देखिए पहले 4 स्लैब स्ट्रक्चर था, मतलब जीएसटी के अलग अलग रेट्स थे, अभी 2 रेट हुआ, एक है 5% वाला और एक एग्जिस्टिंग 18% वाला, इफेक्टिव होगा फ्रॉम 22 सितंबर 2025। सो 5% को मेरिट रेट बताया गया, 18% को स्टैंडर्ड रेट बताया गया, और जो 40% वाला है वो स्पेशल डीमेरिट रेट बताया गया, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे एक एक करके। सो अभी देखिए, रेशनलाइजेशन ऑफ द करंट 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर इनटू सिटीजन फ्रेंडली सिंपल टैक्स 2 रेट स्ट्रक्चर। सो अभी स्टैंडर्ड रेट 18% रहेगा, मेरिट रेट 5% और स्पेशल डीमेरिट रेट ऑफ 40% रहेगा, ठीक है। सो अभी 2 स्लैब स्ट्रक्चर है, 5% एंड 18% वाला, और एक स्पेशल डिमेरिट स्ट्रक्चर है जो आप बोल सकते हो 40% का है, बट एज ए होल सिंप्लीफाइड 2 स्लैब स्ट्रक्चर रहेगा। Now we will study about the 7 pillars of next generation GST reforms. So ये 7 pillars क्या है? पहला पिलर है बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जीएसटी। सो देखिए जीएसटी का जो मेन मतलब मोटिव था, या आप बोल सकते हो उसका जो मेन एजेंडा था, दैट इज वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। दूसरा क्या था, एक्सपांडिंग द टैक्स पेयर स्पेस। सो बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते थे या टैक्स से इवेट करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसके लिए टैक्स पेयर जो बेस है, सो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सके जीएसटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, इसलिए ये स्ट्रक्चर लाया गया। और तीसरा क्या है, सिंपल 2 टियर सिस्टम। एज यू कैन सी 2025 के रिफॉर्म्स में 2 स्लैब स्ट्रक्चर रखा गया है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइए कि 40% क्या है, तो 40% वो डीमेरिट वाला है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मेरिट में अगर देखेंगे 5% एंड 18% है, ठीक है। सो इसलिए इसको 2 टियर सिस्टम बोला जाता है। सो पहला पिलर क्या है, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जीएसटी। दूसरा है रेशनलाइजिंग रेट्स फॉर फेयर टैक्सेशन, ताकि जो मतलब ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जो है उसको सिंप्लीफाई कर सके, स्मूथ कर सकें, और जो रिफंड्स वगैरह है उसको फास्टर प्रोसेसिंग कर सके, इसलिए अलग अलग स्लैब्स नहीं दिया गया, ओनली 2 स्लैब्स हैव बीन इंक्लूडेड। तीसरा है सिंप्लीफाइंग फाइलिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। अभी आपको पता है कि हम लोग जो है हम लोग मतलब जो टैक्स फाइलिंग वगैरह या जो भी जीएसटी फाइलिंग करते हैं, ठीक है,
उसमें अगर हमने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया तो उसमें रजिस्ट्रेशन ईजी होगा एंड स्मॉल एंड लो रिस्क बिजनेसेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा, ठीक है। फिर 90% अपफ्रंट प्रोविजन एंड रिफंड फॉर एक्सपोर्टर्स हैव बीन प्रोवाइडेड, डिजिटल कॉम्प्लायंस जिसमें ई इनवॉइसिंग वगैरह रहेगा और एआई ड्रिवन रिस्क डिटेक्शन, यू नो दिस इज थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, यू कैन से जीएसटी सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पिलर अगर देखेंगे, पुटिंग कंज्यूमर्स फर्स्ट। सो जितने भी एसेंशियल गुड्स है आपको दिखाऊंगा मैं लिस्ट, वो ज्यादातर 0 to 5% वाले मतलब टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। आइदर 0 होगा, नील होगा, नहीं तो 5% ब्रैकेट में रहेगा। और हाई वैल्यू आइटम्स जो है मिडिल क्लास के लोगों को रिलीफ देने के लिए जो कार वगैरह है, हम देखेंगे इसमें भी स्पेसिफिकेशंस है। सो वो 28% से रिड्यूस करके 18% लाया गया। और जो दूसरे हाई एंडिंग कार्स है जिसका बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट है, ठीक है, उसको 28% से 40% स्लैब में ले गया गया, ठीक है। फिफ्थ पिलर है एम्पावरिंग एमएसएमईज एंड मैन्युफैक्चरर्स। सो फिक्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनाया गया है टू हेल्प द एमएसएमईज एंड सिंपलर रेट्स मेक मैन्युफैक्चरर्स के लिए अंडर मेक इन इंडिया, उनके लिए क्या होगा, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर विल हेल्प देम, ओके, टू प्रमोट मेक इन इंडिया। सिक्स्थ पिलर क्या है, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स स्ट्रॉन्गर भारत। सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ होगा फॉर ऑल द स्टेट्स एंड रेशनलाइज रेट विल इंक्रीज डिमांड, ठीक है। सो जितने भी स्टेट्स अगर अगर देखिए जीएसटी में ज़्यादातर लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, टैक्स स्लैब अगर टैक्स का जो बेस है वो बढ़ता है तो क्या होगा, इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, ठीक है। और सेवेंथ पिलर है लोअर टैक्स इक्वल टू हायर स्पेंडिंग। अभी टैक्स अगर कम हो गया सर्टेन चीज़ों में तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, राइट। सो डिमांड विल राइज। डिमांड अगर बढ़ता है तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो ग्रो। और दूसरा क्या है, चिपर अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स विल इंक्रीज डिमांड। सो मतलब चिपर अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक जो है उसका भी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। इसमें और एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी गुड्स बना सके, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है और दाम भी कम हो गए, ठीक है। मतलब जीएसटी कम हो गया तो दाम भी कम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बीच ही क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की चीज़ें बनाएंगे, ठीक है, एट लेसर रेट। अभी देखिए, द लेटेस्ट रिफॉर्म मार्क्स ए मेजर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द जीएसटी स्ट्रक्चर, द शिफ्ट टू ए टू स्लैब सिस्टम ऑफ 5% एंड 18%। और जो पहले का जो एक्स्ट्रा दो स्लैब्स मतलब रेट थे 12% एंड 18%, उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। दिस विल मेक टैक्सेशन मोर ट्रांसपेरेंट। मतलब क्या हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें जो थे वो 12% में थी उसको 5% में लाया गया, और जो 12% में थे उसको 18% में लाया गया, ठीक है। और जो 28% में थे उसको आइदर 18% में लाया गया, नहीं तो 40% में ले गया गया, इसलिए 12% और 18% वाला क्या रेट्स कम, मतलब ये रिमूव हो गया है, ठीक है। ओके। और अगर अभी हम देखते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे जीएसटी का ये जो मतलब रिफॉर्म्स किया गया, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देखिए, फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर में अगर देखेंगे, जो प्रोडक्ट्स है जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, प्री पैकेज एंड लेबल, जो चना है या पनीर है, ठीक है, और इंडियन रेट्स, इसमें जीएसटी 0 होगा, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है, ताकि लोग, पनीर का बहुत कॉस्ट अभी आपको पता है, 1 ग्राम पनीर खरीदने जाएंगे तो 80 to 85 रुपीज़ का आता है, ठीक है। सो मतलब जो छोटा पैकेट होता है अमूल का। सो इसमें बहुत सारी जीएसटी की वजह से क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो दूसरा चीज़ है जो आपके मिल्क है, ठीक है, इसमें भी आप ऐसे लिंक कर सकते हैं ना, हेल्थ से रिलेटेड है मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे। नहीं तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे पूरा भी मिल्क मिलता है, उसमें 36 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे दूसरे मिल्क जैसे अमूल का है तो ये 38 का है, ठीक है। ऐसे अलग अलग मिल्क के पैकेजेस मिलते हैं, मतलब पैकेट्स मिलते हैं। सो जीएसटी की वजह से क्या होगा, देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाली मिल्क है उसमें रिडक्शन आएगा, ठीक है। और हाउस होल्ड जो गुड्स है जैसे सोप्स, शैम्पूज, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, बाईसाइकिल्स, ये सारे अभी 5% के स्लैब में आ जाएंगे, ठीक है। फिर फूड आइटम्स जैसे आपके भुजिया हो गए, सॉसेस हो गए, पास्ता, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व मीट, ये सारे क्या होंगे, अभी 12% से ये, या 18%, पहले अलग अलग रेट लगता था, किसमें 12% होगा, किसमें 18% होगा, अभी ये रिड्यूस होकर 5% स्लैब में आ गए, ठीक है। सो आपने देखा होगा नील मतलब 0% में आ गया, नहीं तो आइडर 5% में आ गया। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल जो होता है, अगर आपके पास एलईडी या एलसीडी टीवीज है जिसका साइज 32 इंचेस से कम है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको
28% पहले जीएसटी लगता था, अभी 18% लगेगा। फिर एसीज जो है, ठीक है, डिश वॉशर्स जो है, इसमें भी जीएसटी रिडक्शन होने की वजह से ये क्या होगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मेक इन इंडिया, ऐसे आप लिंक कर सकते हो, मेक इन इंडिया प्रमोट होगा। नेशनल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो एम था, ठीक है, 1 बिलियन मार्केट का टारगेट था बाय 2030, उस वो भी फुलफिल होने जा रहा है। बिकॉज जब भी एसीज का कॉस्ट कम होगा, घटेगा, तो क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर वगैरह यहाँ पे आईसीज वगैरह बनाएंगे, तो क्या होगा, हमारा लोकल इंडस्ट्रीज प्रमोट होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज स्ट्रांग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप लिंक कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर। फिर होम बिल्डिंग एंड मटेरियल, अगर आप घर बनाना चाहते हो तो सीमेंट की बहुत ज़रूरत होता है, तो सीमेंट का जो जीएसटी है, पहले 28% लगता था, अभी ये घट के 18% हो गया है। फिर मार्बल, ट्रेवरनाइट ब्लॉक्स, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, सैंड लाइन ब्रिक्स जो है वो 12% से 5% हो गया। फिर बैम्बू फ्लोरिंग, फिर जॉइनरी, पैकेजिंग केसेस, पैलेट्स जो वुड से बना वो 5% हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अगर देखेंगे आप, जैसे स्मॉल कार्स, टू व्हीलर्स जो 350 सीसी के बराबर या उससे कम हो, ठीक है, उसमें जीएसटी 18% हो गया है, ठीक है। एंड बसेस, ट्रक्स, थ्री व्हीलर्स एंड ऑल ऑटो पार्ट्स, ये भी घट के 18% हो गया फ्रॉम 28%। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखेंगे, ट्रैक्टर्स, सो ट्रैक्टर्स में 12% पहले जीएसटी लगता था, ये 5% हो गया है। और जो उनके टायर्स एंड पार्ट्स होते हैं वो भी 5% हो गया फ्रॉम 18%। फिर हार्वेस्टर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जो है, थ्रेशर्स, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, पोल्ट्री, बी कीपिंग मशीन्स वगैरह, ये भी 5% हो गया है। बायोपेस्टिसाइड्स एंड नेचुरल जो मेथड होते हैं वो भी घट के 12% से 5% हो गया है। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर में अगर देखेंगे, अगर अभी जैसे विंटर का टाइम है तो बहुत सारे लोग मतलब बच्चों को भी विंटर वेकेशन होता है, ठीक है, या आगे भी समर वेकेशन आएंगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो होटल में जो उनको पे करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेट्स देने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ जीएसटी। सो अभी जो होटल स्टेज है, मतलब जैसे अप टू 7,500 पर डे, किसी होटल का जब अगर रेट 7,500 या उससे कम है पर डे, तो उसका जो जीएसटी पहले लगता था वो 12% था, अभी ये घट के कितना हो चुका है, 5% ओनली। फिर जिम्स, सैलून्स, बार्बर्स, योगा वगैरह जो होता है उसमें जीएसटी कट डाउन हुआ है फ्रॉम 18 टू 5%। फिर टॉयज, स्पोर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स में अगर देखेंगे, तो हैंडीक्राफ्ट आइडल्स एंड स्टिचूज जो है उसमें जीएसटी पहले 12% लगता था, वो 5% हो चुका है। सो वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए भी अच्छा चीज, मतलब अच्छा है, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि जीएसटी अगर घट गया तो वोकल फॉर लोकल भी प्रमोट होगा। और असम के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे हमारे यहाँ पे आषाढ़ी कंडी जो डॉल्स है, ठीक है, सो वो वगैरह, या वोकल फॉर लोकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आइडल्स वगैरह जो है, ये सब इसमें भी जीएसटी रिडक्शन होगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी, इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन रिलेट दिस थिंग्स। देन पेंटिंग स्कल्पचर्स में भी 12 to 5% हो गया है। वुडन, मेटल, टेक्सटाइल जैसे डॉल्स एंड टॉयज वगैरह है वो भी 5% हो गया फ्रॉम 12%। एजुकेशन सेक्टर में अगर देखेंगे, एक्सरसाइज कॉपीज, बुक्स जो होते हैं ना, जो लिखने वाले कॉपीज होते हैं, फिर इरेजर्स, पेंसिल, फिर कलर पेंसिल जो होते हैं, क्रेयॉन्स, शार्पनर्स, इसमें भी क्या होगा, जीएसटी भी 0% होगा, ठीक है। सो ये सपोर्ट करेंगे सारे एंटायर फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स को, ठीक है, फॉर इंश्योरिंग लोअर कॉस्ट ऑफ लर्निंग मटेरियल। दूसरा, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस है, स्कूल कार्टून्स वगैरह होते हैं, ट्रेज वगैरह होता है, ठीक है, वो भी घट के 5% हो चुका है फ्रॉम 12%। मेडिकल सेक्टर में अगर देखेंगे, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स, डायग्नोस्टिक किट्स, इसमें पहले 12% लगता था, ये घट के अभी नील हो चुका है। अदर मेडिसिन जो है आपके, जैसे आयुर्वेदा से रिलेटेड मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, होम्योपैथिक से रिलेटेड, उसमें भी 12% जीएसटी लगता था, अभी घट के 5% हो चुका है। स्पेक्टिकल्स एंड करेक्टिव गूगल्स जो होते हैं उसमें 28% लगता था पहले, देखिए इसमें घटा के 5% कर दिया, दैट इज वेरी गुड थिंग। सो अगर आपको चश्मा वगैरह खरीदना है, इफ यू planning to like use corrective glasses, you can buy it, okay, after 22nd September. मेडिकल ऑक्सीजन थर्मोमीटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो आइडर 12 से 18% की स्लैब टैक्स रेट में आते थे, अभी उसको घटा के 5% हो गया है, ठीक है। फिर मेडिकल, डेंटल एंड वेटरनरी डिवाइसेस जो है, कट वगैरह, ठीक है, डिवाइसेस जो यूज होते हैं, उसमें भी घट के 5% हो चुका है। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस में अगर देखेंगे, GST exemption of life and health insurance premiums will expand financial protection and also it will support जो मिशन इंश्योरेंस है फॉर ऑल, ठीक है, एक मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल है बाय 2047, ताकि फुल्ली इंडिया में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के पास इंश्योरेंस हो, ठीक है, दैट इज अ मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। इसको प्रमोट करने के लिए भी जीएसटी एग्जेम्पशंस दिए गए, ठीक है,
So on GST exemptions will be provided on premiums for individual life insurance, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लोटर प्लान्स, सीनियर सिटीजन पॉलिसीज, इस सारे में जो जीएसटी लगता था अलग अलग रेट्स वो भी घट जाएंगे। ठीक है, फिर अभी देखते हैं हम लोग बेनिफिट्स फॉर ऑल, कैसे सारी चीज में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे बेनिफिशियल होगा सबको। देखिए पहली बात है जीएसटी रिडक्शन की वजह से क्या होगा, चीज़ों का दाम कम होगा, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, जो आपके लोग पहले जैसे खर्च कम कर रहे थे अभी वो खर्च ज़्यादा करेंगे, डिमांड फिर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे आप लिंक कर सकते हो, प्लीज ए विशियस वर्चुअस साइकिल ओके ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर एमएसएमईज। सो एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे, जैसे सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स का दाम ये सब रेट्स कम हो गए। ठीक है, दिस विल मेक बिजनेसेस मोर कॉम्पिटिटिव। ईज ऑफ लिविंग अगर देखेंगे, ऑब्वियसली टू रेट स्ट्रक्चर विल मीन फ्यूअर डिस्प्यूट्स कम होंगे। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होगा इसमें, क्विकर डिसीजंस, लोग डिसीजंस इजीली ले पाएंगे क्योंकि आइडर 5% इंटू 18% होगा। सिंपलर कॉम्प्लाइंसेस, टैक्स रेट्स इजी कम करने की वजह से टैक्स रेट्स ओनली 5% 80% है, टू टैक्स रेट स्लैब है, तो इसके वजह से क्या होगा, कॉम्प्लाइंसेस भी इजी होंगे। वाइडर टैक्स नेट, सो मोर एंड मोर पीपल विल कम इनटू द जीएसटी बिकॉज ऑफ दिस, एंड जो टैक्स बेस है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, दिस विल इंप्रूव द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंटर। नेक्स्ट सपोर्टिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सो हमने देखा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स बनाए गए फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस एंड एक्सपोर्ट्स। ओके, सो जैसे हमने देखा था वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए भी ये काम आएंगे, जैसे आपके टॉयज वगैरह या जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है उसमें भी जीएसटी कम होंगे, तो इससे क्या होगा, वोकल फॉर लोकल प्रमोट होगा एज वेल एज डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी इंप्रूव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखेंगे, ऑब्वियसली लोअर रेट्स विल विच बेटर कॉम्प्लायंस इंक्रीजेस कलेक्शंस। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा तो क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट का लॉस होता है, बिकॉज ज़्यादातर लोग इवेट करते हैं टैक्स। ठीक है, तो अभी कम टैक्स देने की वजह से सब टैक्स देंगे ना, सभी जीएसटी, जैसे किसी चीज़ आपने खरीदा हो तो अगर वो जैसे नील या 5% जीएसटी में आता है, 18%, तो इजीली मतलब दुकान से आप लोग जीएसटी वाले बिल ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब दुकान के जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे, अभी जीएसटी मतलब फाइलिंग करने में इजी होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जीएसटी बिल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है इकोनॉमिक मोमेंटम। कॉस्ट अगर कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगा तो टैक्स बेस बढ़ेगा, रेवेन्यूज बढ़ेंगे। ठीक है, दिस विल लीड टू सस्टेनेबल ग्रोथ। सोशल प्रोटेक्शन, जिसे एग्जाम्पशन अगर हमने रखा ऑन जीएसटी, तो हमने देखा है कि इंश्योरेंस एंड एसेंशियल मेडिसिन में भी जीएसटी घट गया है। इसकी वजह से क्या होगा, हाउस होल्ड सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर विल बी अवेलेबल टू ऑल, दिस विल एंश्योर सोशल प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स जो जीएसटी से पहले थे, ठीक है, जो वैट सिस्टम थे इनडायरेक्ट टैक्स के, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, इसमें क्या होता था कि पहला जो प्रॉब्लम था, नो यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स वे रेट्स अक्रॉस स्टेट। ठीक है, एडिशनल लेवीज लाइक एंट्री टैक्स रेज कोस्ट, मतलब क्या होता था, पहले ऐसा था कि दो स्टेट्स अलग अलग हैं, ए और बी स्टेट है, इसमें अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक्स में अगर ये 50 रुपीज़ था, ये बी वाले स्टेट में क्या होगा, जैसे आप मान लो 70% है, 70 रुपीज़ है, तो क्या करेंगे, बी वाले लोग ए वाले स्टेट से चीज़ें खरीदेंगे, तो इससे क्या होता था, बी वाले स्टेट के जो इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट होते थे क्योंकि ज़्यादातर बाहर से लाते थे। ठीक है, क्योंकि चिप है। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा भी हो सकता था कि एंट्री टैक्स जो है, एंट्री टैक्स रेज होता, मतलब दोनों स्टेट में क्या होता था, एंट्री टैक्स अलग अलग है, इससे क्या होगा आपका, जैसे इसमें अगर आप मान लो ये स्टेट को लगा कि ये लोग ऐसे कम है इसका दाम, तो ये मतलब ये कर रहे हैं राइट, यहाँ से इंपोर्ट करें, ए से बी तक इंपोर्ट करें, तो बी वाले मतलब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें, तो इसमें क्या होगा, ए वाले स्टेट का जो है आपके चीज़ों का मतलब जो आप बोल सकते हो क्वांटिटी वो घट जाएगा, कि ए वाले स्टेट में वो प्रोडक्ट एक्स वाला प्रोडक्ट मतलब कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक एंट्री टैक्स लगाएंगे 20 रुपीज़ का, तो इसमें क्या होगा, टोटल अभी 70 रुपीज़ देना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेम हो गया ना अभी ए और बी में, तो फायदा क्या है बी को ये लाके। ठीक है, सो बी नहीं लाते थे, सो इसमें क्या होगा, फिर ए का लॉस होगा, तो ये सारे मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलता था रिलेटेड टू एंट्री टैक्स एंड यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं था। जीएसटी आने की वजह से ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। क्यों, अभी एक चीज़ का दाम अगर ये 70 रुपया है यहाँ पे, तो इसमें भी 70 रुपया होगा, जिसमें प्रोडक्ट अच्छा है सी वाले स्टेट में भी 70 रुपया है, तो जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए जो बेटर क्वालिटी का है वो ला सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डिफरेंट रूल्स फॉर रिटर्न्स, ऑडिट्स एंड पेनल्टीज। सो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स होते थे रिलेटेड टू रिटर्न्स, ऑडिट्स एंड पेनल्टीज, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होते थे। ठीक है,
तीसरा है वीक इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो वीक टैक्स इनपुट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये वीक होता था। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग टैक्स का मिसयूज करते थे, टैक्स इवेट भी करते थे, ठीक है। फिर डबल टैक्सेशन, वेट प्लस सर्विस टैक्स। सो ये जो होता था डबल टैक्सेशन की वजह से क्या होगा, जो कंज्यूमर्स है या जो बिजनेसेस है उसमें इम्पैक्ट होता था, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के लिए दोनों स्टेट में अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, ठीक है, या डबल टैक्स देने पड़ते थे। जैसे अगर मान लो एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है, तो एक चीज अगर इसमें ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, एक प्रोडक्ट मैंने बेचा है यहाँ पे बी से ए, तो इसमें अगर 70 रुपये में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है, सपोज मान लीजिए 20 रुपये टैक्स है, तो ये जो चीज जाता था फिर प्रोडक्ट ए वाले स्टेट के जो कंज्यूमर्स खरीदेंगे या बिजनेस मैन जो खरीदेंगे, इसमें ये अलग स्टेट से आने की वजह से क्या होगा, अलग एक एंट्री टैक्स लगेगा। इसमें चीज का दाम हो गया अभी मान लीजिए 90 रुपीज, मतलब 20 रुपीज एक्स्ट्रा ए स्टेट ने भी रेवेन्यू कमा लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता था, ये जो कंज्यूमर्स होते थे या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, ए से अगर बी जाएंगे तो सेम चीज होता था। इससे क्या होता है, कंज्यूमर्स जो बिजनेसमैन होते थे या बिजनेस है वो इम्पैक्ट होता था, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता था, ठीक है। सो टू ओवरकम ऑल दिस चैलेंजेस जीएसटी वाज कॉन्सीव्ड एज यूनिफाइड नेशनल टैक्स सिस्टम। परफॉर्मेंस अगर देखेंगे जीएसटी का अब तक तो कैसा है, सो टैक्स बेस जो है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी टैक्स पेयर्स आ गए हैं अंडर द टैक्स बेस। सो अगर आप देखेंगे 2017 में 66.5 लाख टैक्स पेयर थे, ये बढ़ के आप देखो 2025 में अभी कितना हो गया 1.51 करोड़, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ बढ़ गए, इतने सॉरी 35 to 40 लाख टैक्स पेयर्स बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ, जो आपके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है उसमें जीएसटी कलेक्शंस आप देखोगे 22.08 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शंस हुआ था, ठीक है। सो आप अगर कंपेयर करोगे 2000 मतलब जीएसटी जब नहीं आया था 2016-17 फाइनेंशियल ईयर से, सो जो आपके सीएजीआर के जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, सो ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ के 18% हो गया इन जस्ट 4 to 5 ईयर्स, ओके। इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस अगर देखेंगे, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी अगर आप देखेंगे जीएसटी बिल मांगते हैं या दे आर एक्टिव टैक्स पेयर्स। सो आप बोल सकते हो इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। एवरेज मंथली कलेक्शंस अगर आप देखेंगे तो 2017-18 में पहली बार जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स की सॉरी जो एवरेज मंथली कलेक्शन है जीएसटी से वो कितना हुआ था 82,000 करोड़, अभी ये बढ़ के 2.04 लाख, दैट इज 2 लाख करोड़ आप बोल सकते हो, इतना बढ़ गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख का या आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1.3 लाख का मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 1.3 लाख करोड़ का। सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटी सो फार, ओके। सो दिस वाज इट, मैंने अभी जीएसटी का पूरा ये बता दिया आपको जो चेंजेस आए हैं। मैं दूसरा अभी और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, मैं जो ये जो मतलब टोटल जो लिस्ट है जीएसटी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीआईबी में अगर जाओगे ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप देखिए जैसे पर्टिकुलरली मैं व्हीकल का दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सपोज आपको एक गाड़ी खरीदना है, ठीक है, अगर आपको गाड़ी खरीदना है, सपोज आप मान लो यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी खरीदना है, ठीक है, विथ स्पार्क इग्निशन वगैरह। सो अगर आपका जो यहाँ पे देखो आप पॉइंट नंबर 317 में, अगर आपका जो गाड़ी है, गाड़ी का अगर इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से नीचे है, ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो आपको गाड़ी का लेंथ है वो 4000 मिलीमीटर से कम है। आप गाड़ी का मतलब डिटेल्स देख सकते हो जो आप अगर गाड़ी लेना चाहते हो। अगर आपका इलेक्ट्रिक मोटर प्रोपल्शन में यूज होता है, ठीक है, इंजन कैपेसिटी अगर 1200 सीसी के अंदर है और जो लेंथ है वो 4000 मिलीमीटर से कम है, तो पहले आपका 28% जीएसटी लगता था, अभी जाके ये 18% घट गया है, ठीक है, 10% घट गया है। इट्स बिग नंबर। अगर आपका गाड़ी आप मान लीजिए गाड़ी अगर 10 लाख का है, आप खुद सोच सकते हो 10 लाख का गाड़ी है तो मतलब क्लियरली आप देख सकते हो 1 लाख का आपका मुनाफा मतलब बच गया है, ठीक है। फिर अलग अलग यहाँ पे दिया गया है आपका, ठीक है, मतलब आप पढ़ सकते हो यहाँ पे अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग थ्री व्हीलर जो थ्री व्हील व्हीकल्स हैं, जैसे आप बोल सकते हो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शास चलते हैं, ठीक है, उसमें भी आपका मतलब बहुत कम हो जाएगा, 18% घट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर लिस्ट, मैं आपको दे दूंगा, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। सो ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।